join us on stage for your comedy. Might be the biggest thing that defines your career in terms of what all you've done, especially with Sajjanpur, which according to me is one of your best. But I'm so proud of the body of work. And generally, I think direction is so... Sir, ये इनकी दूसरी film है as a director. Yeah, I was quite directionless actually. So I wanted some direction in my life. But after Poster Boys, which according to me is very futuristic comedy, अगर आप Bollywood, Hollywood film में देखोगे, तो उसमें वो एक चलन होती है, fast. इतना fast जा रही थी वो film, and I think somewhere he was. मैं Hollywood पहुंच गया. Is it true to say कि आपके साथ एक baggage आता है of comedy? I'm just asking because I feel that is something that you've, claimed for yourself. I was actually turned down from a film because they thought that I was quite a serious actor, after Iqbal especially. Was a very prominent big filmmaker who said, "तू ना यार थोड़ा serious किस्म का actor है," after Iqbal. And मेरे को कई बार मेरे नाम को भी confuse करते हैं लोग, मेरे को श्रेयस के जगह पे serious तलपड़े भी बोलते हैं. So that point of time, I thought that I need to get this thing out of people's mind that I can only do a kind of films. And imagine, even though I know you're a very sincere, serious, methodical actor, I would always look at you with this sense of humor, like a blast, a volcano. Yeah, of because it. I used to do theater, which was essentially a lot of comedy and humor and things like that. So I said, might as well try something. And luckily at that point in time, Rohit offered me Golmaal Returns. And that pretty much changed the whole thing for me, because then people started approaching me for a lot more comedies. Until date, I'm known for my तो comedies. इन्होंने आपको बैलेंस शीट नहीं मांगी पोस्टर बॉयज की क्योंकि सेकंड टाइम रिस्क ले रहे हैं तो ऑनेस्टली बताइए बातें क्या हुई है यहाँ come on he's putting in everything there can you believe the first thing that he said श्रेयस भाई यहाँ आके पूछा श्रेयस भाई रिस्क तो नहीं है ना पहले ही पूछ लेते हाँ because you begin in November and I think he wants to say this in front of the world but I guess he knows. No, but you know what? The thing is, what I think actually convinced all of us is pretty much like he said, is the story. And today is a time when content-rich films are really working big time. I so wish and I hope that, Door and Sajjanpur and Iqbal and Dil Dosti, etc. would have released today. We would have probably cracked the 100 crore club with those films. But yes, we've always believed in that kind of films. I have believed in those kind of films. And I'm very glad that, Hariji here and Raj sir both have that kind of same conviction. And it is the same conviction that just got us together and we decided to do this film. क्योंकि एक नए वेंचर के लिए 3 लोग यहाँ पे बहुत महारथी खड़े हैं. Let's clap them with our blessings. This is more like congratulations. And it is inspired from a true story. हमारे विक्रम शंकर जी राइटर कहाँ है जरा हाथ ऊपर वहाँ देखिए तो वो like राज जी also mentioned कि वो लोग ट्रैवल कर रहे थे पटना में टैक्सी में और टैक्सी ड्राइवर से बात करते करते उसकी कहानी सुनी और कहा भैया जरा बगल में लगाना पूरी कहानी बताना. You must be such a fabulous listener कि आपने उनकी बातें सुन के actually ये पूरा process शुरू किया है. Now this credit goes to also Mr. Vikram Shankar. He is a very good storyteller. हाँ वो खुद मतलब राइटर है और वो कहानी बाकी भी कहानियाँ लिखी है. सर हम भी लेकिन बदनाम होते हैं आरजे सर बात करते सुनते नहीं हैं. You know what I'm saying? For him to be a writer and a good listener and then take the cue. Exactly. You should have been in the cabin. You should have narrated your story to him. Probably would have made this. Today that would be the movie. Archana would have been the. Shreyas, what is the challenge? I know we can't talk too much about the story. As a director, what is the challenge? I know you're too high, you're a mark for challenges, but honestly, what is the challenge? With a lot of challenges. And सरकार की सेवा में का वो जो हम लोग करने वाले हैं. See, it's like, when I did Poster Boys was pretty much something that was my baby, I mean, I had worked on it in Marathi, I had known the whole film in and out, Hindi, we worked on the script and everything. But when something like this comes along, and you know what, he approached me to direct the film first and then act in it. So which was for me also pretty surprising. He said, sir, आपको आंसर देना है इसका पोस्टर बॉयज देखी थी आपने? हाँ. So फिर direction क्यों? फिर भी. Because I'm sorry, I'm again saying this. He comes with a baggage of being a fabulous comical timing, and I'm thinking the story has something heavy about it. So I want to know from you, sir. 100%. The story absolutely has a lot of humor in it. So that goes without saying. That's why. Because but the कहानी actually जब लाए तब
बड़ी सीरियस सी थी, हमने उसको बदल के कॉमेडी में, या तो आप पिक्चर देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा सीरियस फिल्म थी कि कॉमेडी फिल्म थी, एनीवेज बट या मेरा ये मतलब जिंदगी का एक्सपीरियंस है जी कि सक्सेस के पहला स्टेज फेल्यूर होता है। तो आपको लगता है कि अब ये रॉकेट करने वाले हैं, हैप्पी दिवाली टू अस, थैंक यू। तो मतलब उसके पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है किसी एक के कारण उसका फेल्यूर सक्सेस डिपेंड नहीं करता है। बिल्कुल एंड मैं इनको इकबाल से देखा एंड बाकी काम तो हम लोग सब मिलके देखे हैं, तो मुझे लगा ही इज द राइट पर्सन फॉर माय प्रोजेक्ट एज ए डायरेक्टर एंड ऑल्सो द लीड एक्टर मिस्टर श्रेयस जी। So that's it. But yeah, there's like you asked, there are a lot of challenges, you know. But to be honest, there are very few directors that I really trust, and one of them is me. So I guess we'll probably overcome all those challenges in time. No, I have a fabulous team here, you know, my team of actors here, my creative team, Sanjay and Prabhat ji, our direction team, Koshish, Rahul, and all of that, Sandeep. So all of them, I've got a fabulous team here working for me. And Andy, our production guy, and Parthoda. So they are like working really hard day and night to make sure that we create a good product. The idea is to just, you know, get a nice product out there in the market because people are lapping it up. डायरेक्टर होने के नाते 3 चीजें जो आपने शायद 3 आपके डायरेक्टर्स से सीखी हैं, उनका नाम लेते हुए अगर आप बताएंगे, just share this with us because for us we are probably meeting you in the director का रूप. Oh, Bapre. See, I've actually learned something or the other from everything. You know, the kind of directors that I worked with come from varied schools of filmmaking. Right? From Nagesh Kukunur, who is very meticulous, very particular about every little thing. And then there's Farah. 70 mm, who thinks 70 mm, who behaves 70 mm, or matlab wo, it's not that she's not organized, she is, but she's bindas. You know, and then there's Rohit, who's a great combination of both. Everything, you know, I mean, blockbuster films. He knows exactly what the pulse is. Okay, so the one thing that you need as a director, because you are handling a battalion. I don't think people here know कि director का काम कितना मुश्किल होता है. I think one thing I need is blessings. That is all that I need. Oh my, जीत लिया ना? नहीं सच्ची, seriously. Catch घुस गया. अरे please check out my Insta story. First time in my life of hosting a show, I haven't seen a divine Ganesha Murthy staring at me, you know, from a beautiful creative there. Yeah, so yeah, I think that is all that we need right now for this film. Yeah. So I think we should call the cast. You're introducing a new pair here. Yeah. We're introducing a new pair, that's Chetna and Nikhil. This is going to be their first film. Please come up on stage. Let's clap for the new pair that we're introducing. And this gentleman needs no introduction. Sudhir Pandey ji, please stage पे आ जाइए. Sudhir ji, obviously. बाबूजी मानते थे टीवी पे देख कैसे लगता है हमारे लिए. हमारे बाबूजी है. Then there's Shraddha Jaiswal. We've seen her do some fantastic work on TV. This is her first film again. Then there's and a lot of variety you've done, Shraddha. I'm so proud again with the kind of stuff, such varied stuff. And there's Anil Charanjit. Hi. We've seen Anil Charanjit as Shiv Shankar in PK. है ना? We've seen him in varied avatars again. So क्योंकि अभी digital का ज़माना है. Just a question. Yeah. Taking a cue from some of them here who've done digital and have done very well for themselves. What are you thinking about these stars these days, the digital stars? Well, they're huge, they're big, you know. I mean, but I think what these guys are doing in the film is going to be phenomenal stuff. And like you said, Kit, this film is about actors. Yeah. This story is about making sure that the actors are right and they cast right in those particular parts. So I think we've tried our best to make sure that they fit the part and they better do their job well. Okay. एक लाइन लेती हूँ. आपको देख के तो वैसे भी एक smile आती है because you start thinking of all the things he's played. What an honor is it for you to be with this amazing? ये बहुत कम लोगों को पता है. 10 साल पहले आपको तो मैं बता चुका हूँ गोलमाल के टाइम पे आई वाज असिस्टिंग रोहित सर. सो मैंने श्रेयस भाई को ये बताया था कि मैं इंडस्ट्री में एक्चुअली इनकी वजह से हूँ. इतनी आपने स्टोरी सुनी है कि किसी ने फिल्म छोड़ी या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि दूसरे एक्टर को मौका मिला है. तो listen, everyone says Bachchan Sahab. How is this possible? So that's no. I just want to know the truth. So for a change, श्रेयस भाई थे. So actually मैं विस्लिंग वुड से पास आउट हुआ 2010 में और सुभाष जी का फ़ोन आया कि अनिल ऐसा एक सॉन्ग शूट कर रहे हैं. एंड
सॉन्ग शूट हुआ, नेक्स्ट डे मुझे पता चला, मैंने पेपर्स में देखा एक्चुअली श्रेयस भाई कुछ और फिल्म का शूट कर रहे थे, डेट्स का कुछ इशू हुआ था, तो हालांकि सॉन्ग वॉन्ग शूट हो गया था, Yeah. तो सुभाष जी ने मुझे बुलाया और वो सॉन्ग मुझे ऐसा मिला, और जब मैं एडिट पे जाके मैंने सॉन्ग देखा तो आई वाज लाइक कि ये तो बहुत अच्छा है, इसको क्यों रीशूट कर रहे हैं, बट आई थिंक वो किस्मत में था, सो दैट्स हाउ मेरी पहली फिल्म आई, एंड वो कनेक्शन अब ऐसा बना है कि इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और Life's come a full circle. फुल for you, सर्कल, Anil. एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो हैप्पी एट द सेम टाइम। गोलमाल के टाइम पे भी श्रेयस भाई से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो ऑफ कोर्स इनकी टाइमिंग बहुत अमेजिंग। गोलमाल अगेन के टाइम पे अनिल वाज आवर अनिल, अभिषेक एंड रंजनी वर आवर एक्टिंग इंस्ट्रक्टर्स एंड दे वुड टेल अस हाउ टू एक्ट। इस बार मैंने कहा कि अब इस बार मैं बताऊंगा तुझे। Tell आजा them. बेटा। Wow, really? नहीं एक्चुअली वी कांट टीच जितने गोलमाल के सारे 18-20 एक्टर्स है, यू कांट टीच देम बिकॉज यू हैव ग्रोन अप वाचिंग देम, यू कांट टीच देम, The सो हम लोग toughest part of comedy for you, नॉट टू डू कॉमेडी, to not do it. not to do it. Actually, I believe in situational comedy. And श्रेयस भाई ने जब ये स्टोरी नरेट ही की जब मुझे, जी। I was like कि bang on, कितना हंसाया उन्होंने? बहुत हंसाया। तो ये Narration is such a I think- Herculean task. कैसे होता है वो? I think he is going to be the best director in coming years. Oh my 100% God! because- Let's clap for because- this also. Blessing, please. I'm not buttering, but I'm saying because no, being a great actor and आपको सारे कैरेक्टर्स दिख जाते हैं ना, जी। आप सबको अच्छे तरीके से आप गाइड कर सकते हो जी। एक्टर्स के माइंड में जाके, जी। ना कि एज ए डायरेक्टर। Yeah. सो आई थिंक ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जो काम आएगी। I hope आपकी काली जबान है और ये सच हो. ऐसा I'm ही gonna होगा। move on. मेरी बटरिंग हो चुकी। I'm going to move on to Shraddha, and I really need to know, since you've done such variety of work, आपके लिए इस project में, apart from this man and a great team, क्या exciting है? As you said, I have done a lot of variety of work, and this is one more variety which I have never played in my life. And जब मैंने इसका ऑडिशन दिया था और जब मुझे स्क्रिप्ट मिला था, ये तो मुझे लगा था ये मुझे ही करना था। It was so much fun. हाँ. And एक ही ऑडिशन हुआ कि मल्टीपल हुए? क्योंकि आपने बोला कि आपके लिए टफ था ये. Oh no! Multiple. I see a story here. multiple, but जो कैरेक्टर है अमेजिंग है. Okay. And वो कैरेक्टर के लिए I wanted to play this role, but I didn't know it's opposite him. तो वो add on हुआ and directed by him. And when I heard the script, मैंने कहा bang on. Bring it on, more than bang on. Superb. I'm so looking forward to it. Of course, we are going to see, just for little tease for you, हम लोग अभी तक पिक्चर की शूटिंग full on शुरू नहीं हुई है. We're beginning in November. So we're going to see a pre-look. This is not the first look. This is not a poster. It's a pre-look, almost like a peekaboo into it. I'd like you to pass on the mic to Nikhil. Hi. Hi. What's up? Is it कि आपका कैरेक्टर आपसे ही इंस्पायर्ड है? पानी मिलेगा? नहीं इतना नहीं बुलवाएंगे, बस जितना आप बोल सकते हैं. जी ऐसा है, थोड़ा खुराफाती हूँ मैं, और दिल्ली से हूँ थोड़ा, तो और ये बेस भी पूरा यूपी में होने वाला है, तो हाँ जी, नहीं थोड़ा स्लैंग का थोड़ा डिफरेंस है, वहाँ थोड़ा अलग भैया भैया बोलते हैं। ये लैंग्वेज की निकल पड़ी है. कोई भी पिक्चर इस लैंग्वेज में आप देख लो, आपकी हंसी छूटना बंद ही नहीं होती है. क्या है खास? जैसे आप अब प्लीज बताएं, आपके बचपन में कोई आपकी कोई मौसी चाची रही होंगी जिन्होंने कुछ तकिया कलाम यूज किया होगा जिसको सुन के आपको भी हंसी आती होगी. कुछ ऐसा याद, ऐसी कोई याद है आपकी? मतलब ऐसा बचपन की यादें तो अभी तो शरीर का होगा जी। ऐसी कोई याद नहीं है, मतलब जैसे अभी रिसेंटली, मतलब सवाल आपका समझ नहीं आया। मतलब कि कुछ कैरेक्टर रियल लाइफ के होते हैं जिनको देख के आप बड़े इंस्पायर्ड रहते हैं कि हाय ये क्या है, एंड देन यू समवेयर गेट अ चांस टू प्ले इट इन अ मूवी, यू नो. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ प्लीज. बड़े दिल से, भाई पानी दे दो प्लीज कोई। ये तो दिल से पहले भी बात निकली थी. बात ये है कि ये मेरी फर्स्ट फिल्म है जी. सो मैं कुछ 13 साल से यहाँ पे आई बीन स्ट्रगलिंग, और मैंने सीरियल्स बहुत कुछ किया दबा के, बट वो मज़ा नहीं आ रहा था. मैंने कहा कभी फिल्म्स मिली भी, कभी पासपोर्ट नहीं हुआ बना, कभी वीज़ा नहीं लगा, किस्मत खराब होती है थी. तो मैं कहा पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ. Honest. मैं सर को मिला, मैंने जब स्क्रिप्ट सुनी, जो स्टोरी सुनी, ये तो मतलब बहुत बाप है.
मतलब मैंने एक ऑडिशन दिया, थैंक यू सो मच मैम। तो मैंने Let me एक, open it for you. नहीं आई डू दैट Ah, मैम। no, no, please talk. हाँ, तो मेरे को पहले पराग पी लो, भाई हैं जो, पहले पी लो. बड़े शिद्दत से इनका सपना पूरा हुआ है. बस नहीं सर, पीते पीते बात मत कीजिएगा. तो मेरे को पराग भाई का कॉल आया, मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया था, तो पराग भाई का कॉल आया, कह रहे भाई तेरा नंबर नहीं मिला, तू कहाँ पे है, बड़े दिन से दिखा नहीं, तो एक ऑडिशन है, बहुत सही स्क्रिप्ट है, निखिल तू आ जा। हाँ, मैं कहा भैया अभी आ रहा हूँ। हाँ, मैं कपड़े पहने, मम्मी पंजाबी हो गई थी, बेटा कहाँ जा रहा है? मैं कहा ऑडिशन देने, कहती इतनी रात को ऑडिशन नहीं होते। मैं कहा होते हैं, कभी कभार होते हैं, वो मेरे पे शक करते हैं, मैं कभी कभार होते हैं। मैं गया ऑडिशन देने, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, हाँ, जो ऑडिशन स्क्रिप्ट थी, हाँ, बड़ी मतलब जालिम समझते हो, हाँ, खुराफाती। हाँ, मैं कहा भाई ये मैं हूँ, आय हाय. मुझे करना है ये। हाँ, मैं कहा भाई मैं करूँगा। मैंने एक ऑडिशन दिया, पराग भाई फ़ोन पे बात करते हैं, इनके असिस्टेंट आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि बढ़िया है आप देख लो। मैं कहा मेरे को मत दिखाओ, एक बार उनको दिखा दो। पराग भाई आए, मैं कहा भाई एक ही दिया और मेरे को लग रहा है इससे अच्छा दे नहीं सकता। और बस अगले दिन गुरुजी के पास पहुंची चीज़, और ग्रीन सिग्नल हो गया ग्रीन आपका? सिग्नल हो गया। आज मुझे एक हमारे एडी भाई का मैसेज भी आया था, मतलब उनका मैसेज आया कि यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार आज। तो मैं उसको मैसेज किया, कौशिश भाई आज ने। मैंने उनको मैसेज किया, मैं कहा भाई मैं तो फाइनल हो गया, अब आपने लेट पूछा है। फिर मैं कहा मैं चलाता हूँ, गाड़ी चलानी आती है। वेल बहुत अच्छी कास्ट है मेरे साथ। मेरे प्रोड्यूसर जो है, मेरे डायरेक्टर जो है, ताली बजाओ। बिना पानी पिए, पानी Thank you. पीने के बाद ये हाल है, और फिर फिल्म में क्या तो आप सोच लो कि फिल्म कैसी होने वाली है। ये वेरी कूल Thank you, जी। निखिल, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट. सॉरी मेरे साथ कॉमेडी हो रही है. You want to tell us what a madhouse this is going to be? I can't even imagine. आप क्या सोच रही हैं? I mean, You look- abhi, I just met him. This is the second time, and I Okay. can imagine the first time also जब इसका shoot चल रहा था, we all were like, कहाँ से आया ये? So I think you know it is. we all literally said ये कहाँ से पकड़ के लाए हैं? He's awesome. So are you looking forward to this pairing? This is so cool. Yeah, I mean you know it's very unusual. Yeah. And it's very cool. हम इसे heels भी देने की बात कर रहे थे. No, please keep it like this. It's awesome. You want to tell us something about Shreyas and your memory of first, probably memory of जब आपने इनकी picture देखी होगी या जब मैं पैदा हुई थी ये ऑलरेडी पिक्चर कर रहे हैं, फिर मैं बड़ी हुई, ये फिर भी पिक्चर। I और वैसे actually ही हम heard लग a रहे lot about him through Rohit sir because I was a part of Dilwale. So वो जो team थी, that was the first time I actually got introduced to films, and it was so epic. Like I used to just always dream about, you know, being a part of something like this where Shah Rukh sir and Kajol ma'am and Rohit Shetty is directing. So it was an absolute dream, and now the second one is with him. So you know, I can't ask for anything better. And this particular role, I can't believe it just happened because I didn't really go for the look test. Parag actually called me, but my dates were not available. So I actually went with a friend of mine. He was going for an audition, so he said they audition, dekhte hain kya hota hai. And then I read the script. It was full Desi, full Hindi, and I was not even wearing Indian stuff. So I was like, okay, मैं कल आके देख के जाती हूँ. And I was like, नहीं, मैं नहीं देती. मुझसे इतनी हिंदी बोली नहीं जाती. It was like typical that UP वाली हिंदी. But then somehow I gave it, and in 2 days it just happened. So I feel sometimes जो आपके लिए चीजें होती है ना, आप कहीं ना कहीं से पहुंच जाते हो उनके पास. But welcome to the actor's domain. He will make you speak any language. When he doesn't speak also, he manages to win Yeah, I hearts. am looking forward for a lot of learning. I think sir, आपको तो देख के ऐसे लगता है कि आपसे थोड़ा सा आशीर्वाद ले लें. तो I think इन्होंने आपको इसलिए लिया है वो आशीर्वाद लेने के लिए, है ना श्रेयस? He is नहीं, such श्रेया- an amazing actor. सुधीर जी और हम एक सुधीर जी ऑफ कोर्स वो सीरियल पहले से कर रहे थे, अमानत नाम की, और मैं That was उसमें my favorite. मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था स्मिता बंसल के अपोजिट. तो तब से यू नो हम जब उनको टीवी पे देखते थे सुधीर जी को, तो बाऊजी वाला Yeah, इमेज yeah, इतना yeah. स्ट्रांग था.
तो तभी I come इनफैक्ट from a family of sisters, so एक feeling, you know, like you totally connect. लवली सुपर, तो वैसा ही था उस वक्त हम भी मतलब डर रहा था मैं उनके साथ सीन करने के लिए भी, मेरी मतलब बोलती बंद हो जाती थी. एंड कट टू व्हेन वी ऑफ कोर्स द स्क्रिप्ट केम, द फर्स्ट नेम दैट केम टू आवर माइंड वाज Sudhir ji, and I'm so glad and honored and happy that Thank you, he Chef. decided to be a part of it. आपके लिए श्रेयस then and now कितने नहीं, different हैं ये? डिफरेंट इनकी मतलब इनकी ग्रोथ दिखती है, इनकी प्रोग्रेस काम की दिखती है, इनकी टैलेंट में जो एक निखार आया है वो भी नज़र आता है. और जिस वक्त हम लोग साथ काम कर रहे थे तभी इनमें इतना स्पार्क था और इतने अच्छे अच्छे सीन्स हम लोगों के होते थे. फिर उसके बाद फिर कभी काम करने का मौका नहीं मिला. जी. हम अपने करते रहे काम. ही वाज बिजी इन द फिल्म्स. और फिर when he got, as you rightly said, the film Kuknur wali film, and yes, his work was terrific. Stupendous. Yeah, तो फिर धीरे धीरे मतलब दिखता तो रहता ही है कि आसपास हमारे साथ जिन्होंने काम किया है वो आगे कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, कौन कहाँ तक पहुँचा, कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, ये आसपास नजर आता ही है. But see, imagine sir, junior and now directing you. Yes, it's something really, and because I think the way he narrated the subject, it clearly showed, how clear he is about the subject. Yeah. And second thing, कि जब क्या होता है कि अब आपकी जर्नी एक एज एन एक्टर आप उससे निकलते हैं और उसके बाद जब आप बाकी एक्टर्स को हैंडल करते हैं, हाँ. तो उसको बाकी एक्टर्स से काम निकालना, बाकी एक्टर्स से उन बारीकियों को निकालना जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो क्योंकि क्या है कि आमतौर पे आप देखिए जैसे अभी जिक्र हुआ थोड़ी देर पहले कि अब एक कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा आ गया है, आज उसकी डिमांड हो गई है, उस तरह के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं. और क्या है, बड़े ब्लॉकबस्टर्स तो बनते रहेंगे, वो होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक सादी सी कहानी को सादगी से कह देना ज़्यादा डिफिकल्ट है. Absolutely, sir. वो सबसे ज़्यादा. Absolutely. जो स्टोरी टेलिंग है, आप एक ग्लॉस क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, विजुअल क्रिएट सकते हैं, तमाम जगलरी आप यूज कर सकते हैं बिकॉज वो अवेलेबल है और सिनेमा में वो सब यूज होती हैं. लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब श्रेयात ने मुझे ये सब्जेक्ट सुनाया या कहानी नरेट की जिस तरह से, तो मुझे समझ में आया कि ये वो चीज़ है जो एक सादगी से कही गई है और सादगी से ही प्रोजेक्ट की जाएगी. और जो इसको जो बयान कर रहा है, जो इसको बता रहा है, वो जब इतना क्लियर है और उसने, तो वो मुझे लगता है कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत होगा. So sir, I just want to know, everybody loves reality-based films. These days we love, because we're like, अच्छा ये हुआ है, जी. आपके लिए, as a viewer, how much does a subject attract you if it's really happened? मतलब just to know. नहीं, मेरा तो हमेशा ही मानना रहा है कि सब्जेक्ट ही सब कुछ है. Okay. सब्जेक्ट मतलब स्क्रिप्ट और कहानी के ऊपर कहीं नहीं जा सकते. अगर उसमें कितने भी कुछ हो, सब कैसा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन उसमें अगर गहराई नहीं है, उसमें अगर कुछ बात नहीं है, तो एक्टर कहाँ तक कुछ कर लेगा. तो इसलिए कहानी का और स्क्रिप्ट का मजबूत होना बहुत जरूरी है. उसके ऊपर हम लोग नहीं जा सकते. रियल लाइफ और नॉट, इट डजंट मैटर. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. क्योंकि ये रियल लाइफ बेस्ड फिल्म है, मतलब ये हुआ है. नहीं, मैं कहता हूँ कि रियल लाइफ बेस्ड है, ठीक है, लेकिन अगर फिक्शन भी है ना, वो भी बिलीवेबल जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा. वो सतह पे रह जाएगा. तो कोई भी चीज जब हम दर्शकों को दिखाते हैं, वो बिलीवेबल होनी चाहिए उतनी देर के लिए, चाहे हम कुछ झूठ ही दिखा रहे हैं या ऐसा नहीं होता है वही दिखा रहे हैं, कोई इमेजिनरी कल्पना ही दिखा रहे हैं, वो कल्पना उतनी देर तक आपको उसमें अगर आप डूब जाएं, तो वो एक मेकर की अचीवमेंट है. आहा, मेकर. What are you thinking? बहुत इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था. You want us to see the pre-look first and then take pictures, because I think let them see and get that feel. Yeah, I think that should be. Can we all split here? So some of us can go this side. इधर जाओ, आधे उधर जाओ. हाँ.
ओके श्रेया सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक नए वेंचर के लिए, सेकंड डायरेक्टोरियल फिल्म। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे 2 साल क्यों लग गए आफ्टर पोस्टर बॉयज? पब्लिक बहुत इंतजार कर रही थी, अब वो समय आ गया, 2 साल इतने टाइम ही क्यों? इसी मतलब कहानी भी तो सही होनी चाहिए कुछ करने के लिए। सो आई वाज बिजी विद अदर एक्टिंग थिंग्स, तब गोलमाल भी चल रहा था, सेटर्स की शूटिंग चल रही थी, एंड देन ऑफ कोर्स ये जब कहानी आई तो कहानी में दम लगा और ऐसा लगा कि यार ये मज़ेदार सी चीज़ है, इसको अपने तरीके से बता सकते हैं, एंड दैट्स द रीज़न आई डिसाइड। एंड ऑनेस्टली जब पोस्टर बॉयज डायरेक्ट किया था तब भी सोचा नहीं था कि मैं डायरेक्ट करूँगा, तो वो सनी पाजी ने कहा कि तू कर ले, तो वो मस्ती मस्ती में सारा हो गया। सो सीरियस थॉट ऐसे डायरेक्शन को दिया नहीं था। ऑफकोर्स आई वाज वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स, बट ये जब कहानी आई तो दे लाइक आई सेड दे अप्रोच मी टू डायरेक्ट इट फर्स्ट एंड देन एक्ट इन इट। So I was quite taken aback and surprised, but I loved the story, and that's how we decided to go ahead with it. ओके सर, पोस्टर देख के तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, सो अगर थोड़ा कुछ बता दें, थोड़ा ग्लिम्स अगर मूवी ये जैसे उन्होंने कहा कि एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जो टैक्सी ड्राइवर ने कहा, तो उसी टैक्सी ड्राइवर की एक कहानी है जो कई सालों से सरकारी नौकरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारे को सफलता नहीं मिली। फाइनली ही डिसाइडेड टू बाय हिज ओन कार, अपनी गाड़ी लेने की सोची, और उसके बाद उसके लाइफ में फिर जो घटना घटी उसके वजह से उसे झक मार के सरकार की सेवा करनी पड़ी। तो वो क्या करनी पड़ी, कैसे करनी पड़ी, और उस दौरान क्या क्या हुआ, वो बेसिकली कहानी है। ओके जैसे कि अभी स्टेज पे भी कहा गया है कि जब भी कॉमेडी का नाम आता है तो आपका नाम जरूर है, यू कम विद अ कॉमेडी पैकेज। सो कभी आपको प्रेशर फील होता है, क्योंकि आप जब भी आते हैं एक एक्सपेक्टेशन होती है लोगों को आपसे? Actually, not really, because see, humor is something which is pretty much a part of me. वो एक काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है। मैं कभी कभी कुछ सीरियस फिल्मों में भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि हल्का सा ह्यूमर होना चाहिए लोगों को रिलीफ के लिए। एंड इफ़ यू लुक एट माई फिल्मोग्राफी, तो मैंने फ्रॉम सटायरिकल टू स्लैपस्टिक तो सारा किया है, फ्रॉम डार्क ह्यूमर एवरीथिंग। सो ह्यूमर हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ मी, एंड आई थिंक प्रेशर लेंगे तो फिर वो जैसा चाहिए वैसा काम कर नहीं सकेंगे। इट्स बेटर दैट वी जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम। हमारी स्क्रिप्ट पे जैसे काम हो रहा है, मैंने कहा जो टीम है, जो एक्टर्स है, जैसे निखिल है, बड़ा अतरंग सा कैरेक्टर है वो, और हमें वैसा ही वो बंदा चाहिए था। फिर श्रद्धा है, ब्रिलियंट एक्ट्रेस। सो एक्टर्स, सुधीर जी, यू नो, ऑल ऑफ देम आर प्रीटी मच फिट फॉर द पार्ट। माई ओनली थिंग इज़ टू मेक श्योर दैट दे डिलीवर व्हाट आई हैव इन माइंड, विच आई नो दे विल। सो प्रेशर अगर अभी से लेना शुरू कर दूंगा, देन आई वोंट बी एबल टू रियली परफॉर्म माई सेल्फ। ओके सर, मूवी की बात करें सरकार, सो इसमें इसके पहले भी आपने जो मूवी डायरेक्ट की उसमें एक सोशल कॉज, एक मैसेज दिया गया था, इसमें भी ऐसा कोई मैसेज दिया गया या कोई एक मुद्दा उठाया गया करंट इशू से? वैसा मुद्दा नहीं कहूँगा मैं, बट मैसेज ज़रूर है, और बड़ा प्यारा सा एक मैसेज है टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। जो हम अक्सर जिन चीज़ों की बातें करते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए, वो एक इंटरेस्टिंग तरीके से बताने की कोशिश की है। मूवी में एक्टिंग करना या और डायरेक्टिंग करना ज़्यादा कौन सा चैलेंजिंग लगता है या मज़ेदार लगता है? ये दोनों चीज़ें एक साथ करना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि यू नो, पहले जैसे मैंने कहा कि मैंने सोचा था सिर्फ डायरेक्ट करूँगा, फिर बात आई कि नहीं सर आप ही एक्ट कीजिए, तो फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है। बट बाकी अदरवाइज आई थिंक इज अगर आपकी टीम सही हो तो फिर उतना टेंशन नहीं होता, बट थोड़ा सा प्रेशर तो डेफिनेटली रहता है, क्योंकि मैं अक्सर पोस्टर बॉयज़ के वक्त में अपने डायलॉग खुद भूल जाता था, क्योंकि मैं सनी पाजी, बॉबी, उनके डायलॉग्स पे फोकस करता था। बट आफ्टर दैट आई लर्न अ लॉट, एंड आई होप इस बार वो गलतियाँ नहीं होंगी जो पिछली बार हुई थी। ओके सर, डायरेक्शन की बात करें तो ऐसा see, this is a genre which I am coming back to after a really long time. मैंने शुरुआत इस जॉनर से की है, फिर चाहे इकबाल हो या डोर हो, सज्जनपुर हो, दिल दोस्ती एट्सेट्रा हो, तो आई वॉज नोन फॉर दोज काइंड ऑफ फिल्म। ऑफकोर्स उसके बाद में गोलमाल, आज मतलब अगर आज का जनरेशन मुझे जानता है तो गोलमाल के लिए जानता है, बट आई स्टार्टेड विद दिस जॉनर एंड इट ऑलवेज फील्स ग्रेट टू कम बैक टू दिस जॉनर अगेन, यू नो। तो इम्पैक्ट तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, ह्यूमर भी भरपूर मिलेगा, बट एट द सेम टाइम यू नो वो कैरेक्टर की छोटी छोटी जो नुएंसेस है, पर्सनालिटी ट्रेट्स है, वो सब मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो भी लोगों तक उतने ही स्ट्रांगली पहुँचे जितना ह्यूमर। ओके लाशिश, ऐसा क्या कहना चाहिए, बहुत ही जल्द मूवी बनने वाली है? हाँ, मतलब दिस टुडे हम तो प्रोडक्शन हाउस की लॉन्चिंग है और अनाउंसमेंट थी कि उनके फर्स्ट वेंचर, तो जैसे उन्होंने भी कहा कि वी जस्ट नीड पीपल्स ब्लेसिंग्स। ऐसा नहीं है कि ऑफकोर्स हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चरें बनाना चाहता है,
बट वो मैं जब हमारे प्रोड्यूसर से बात कर रहा था कि सर आप कुछ ऐसा बोलने वाले हैं कि हम और भी फिल्में बनाएंगे, तो उनका आंसर ये था कि सर एक चीज़ होती है कि जब कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त वो सिर्फ उस बच्चे के बारे में सोचती है. वो प्रेग्नेंट होने के बाद ये नहीं कहती कि मैं और 10 बच्चे पैदा करने वाली हूँ, यू नो. सो आवर एफर्ट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम, वेयर वी विल जस्ट गिव अटेंशन टू दिस फिल्म. पहले इसी पे फोकस करेंगे, विल मेक श्योर कि इसको रिलीज़ ठीक से हो, ये ठीक से बने, उसके बाद अगला सोचेंगे. सो राइट नाउ ऑल आवर एनर्जीज आर फोकस्ड ओनली टूवर्ड्स सरकार की सेवा में. थैंक यू, ब्लास्ट ऑफ थैंक यू सो मच.